ناظرین، ٹریفک مسائل پر بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیک آورز کے باعث مختلف مقامات پر ٹریفک کا دباؤ ہے۔ آئی چندریگر روڈ پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہے۔ جوہر موڑ جوہر چرنگی کی جانب راشد منہاس روڈ پر بھی ٹریفک کا بہت رش دکھائی دے رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبشر حسین سے۔ جی مبشر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار ہوتی ہے۔ میں اس وقت مرکزی شارع فیصل کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں بھی جو ہے وہ ٹریفک کا جو ہے وہ دباؤ دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس اوقات کے دوران جو ہے وہ اپنے دفاتر سے چھٹی لے کر اپنے گھروں کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوتے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ ٹریفک کی روانی سست ہوتی ہے۔ میں ان شاہراہوں کی مقامات کی بات کروں تو آئی چندیگڑھ روڈ جانب شارع فیصل جانب ایئرپورٹ، ماڈل کالونی، ساتھ ہی جو ہے وہ گرد و نواح کے علاقوں پر بھی جو ہے ٹریفک کا دباؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح جوہر موڑ جانب جو ہے وہ جوہر چورنگی اور راشد مناز روڈ جانب چیزپ اور گلشن چورنگی کے مقام پر بھی جو ہے وہ عموماً ٹریفک اس دوران جو ہے پیک آورز کا چونکہ یہ وقت ہوتا ہے، اس ٹائم جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی کچھ مقامات پر ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہے وہ ان کی تقرری اور تبادلے بھی اس دوران ہوتے ہیں ٹریفک پولیس اہلکاروں کے۔ تو ٹریفک پولیس اہلکار اس طریقے سے تو اس پیک آورز کے دوران جو ہے وہ سڑکوں پر موجود نہیں ہوتے، لیکن کچھ مقامات پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، ٹریفک کو جو ہے وہ رواں دواں کیا جائے۔ یہاں جو ہے وہ شہری اپنے مدد آپ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھروں کو جلدی پہنچیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بحال ہو۔ جی اچھا مبشر، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ہائی ویز بھی 11 روز سے بند ہیں، تو کیا اس وجہ سے بھی ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آج ہی گڈس ٹرانسپورٹ کا جو ہے جانب سے احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی تھی۔ مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نٹی جٹی ایم ٹی خان روڈ جانب نٹی جٹی کے مقام پر پہنچی۔ ان کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے قریب جو ہے وہ ریلی نے پہنچنا تھا، لیکن اس دوران جو ہے ان کے مذاکرات جو ہے وہ قائم ہو گئے۔ یہ بھی ایک جو ہے وجہ ہے جس کے باعث جو ہے وہ ٹریفک کی روانی متاثر تھی۔ ساتھ ہی مختلف مقامات جیسے گزشتہ روز جو ہے وہ لنک روڈ کے مقام پر بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت کی جانب سے وکلا کے ہمراہ جو ہے وہ دھرنا دیا جا رہا تھا۔ اس دوران بھی ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر تھی۔ چونکہ ٹریفک کی جو مختلف لنک روڈز ہوتے ہیں وہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، تو شہر پر بھی اس کا خاصا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ پیک آورز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب لنک روڈز کے اطراف میں جو ہے دھرنے اور احتجاج ہوتے ہیں، متعدد مقامات پر پانی کی عدم دستیابی کے باعث بھی احتجاج ہوتے ہیں، ساتھ دیگر مقامات پر تو عمومی طور پر پیک آورز کی مزید شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ ٹریفک کا جو ہے وہ دباؤ مختلف لنک روڈز پر ہوتا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ پیک آورز ہوتے ہیں، تو ٹریفک کی روانی مزید جو ہے وہ اس میں شدید دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اسی روز میں بھی رواں روز میں بھی یہ دیکھا گیا۔ آج جو ہے وہ مذاکرات ایک جانب جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں گڈس ٹرانسپورٹ کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ٹریفک جو ہے وہ بحال کی جا رہی ہے، رواں دواں بھی ہے مختلف مقامات پر۔ یہاں بھی جو ہے وہ ٹریفک کا بھی دباؤ جو ہے وہ خاصا کم دکھائی دے رہا ہے۔ جی اچھا مبشر، یہ بھی بتائیے گا کہ ویکنڈ پہ جیسا کہ ہر طرف بہت رش ہوتا ہے، تو ویکنڈ پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کوئی باضابطہ ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا جاتا ہے؟ جی عموماً چونکہ آج پیر کا روز ہے اور عموماً پیر کا جو روز ہوتا ہے وہ ہفتے کا پہلا روز ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ مختلف دفاتر ہوں، کاروبار ہوں، تو لوگ جو ہے وہ مکمل اپنی جو حاضری ہے اس کو یقینی بناتے ہیں اور دفاتر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو باقی جو دن ہیں ان کے نسبت جو ہے پیر کے روز مختلف مقامات پر جو ہے وہ ٹریفک کا شدید جو ہے وہ دباؤ دکھتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آج پیر کا روز ہے اور پیک آورز کا یہ وقت ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر تھی۔ ابھی جو ہے وہ ٹریفک ممکنہ طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ بحال ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے راستوں کی جانب گامزن ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی پلان مرتب تو تاہم جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا گیا، البتہ ضرور جو ہے وہ روٹس میپ جو ہے وہ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ روز جو ہے وہ کمشنر کراچی کے احکامات پر جو ہے وہ رکشہ
2 सीटर और 4 रिक्शों पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया था। तो उन रूट्स का जो है उस हवाले से 11 रूट्स पर चूँकि पाबंदी आई थी, तो उस हवाले से भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान मरतब करवाया गया। जब हमारी जो टीमें हैं क्रिकेट की वो भी खेलने आती हैं तो मुख्तलिफ रूट्स पर जो है वो प्लान मरतब करवाया जाता है। आने वाले रोज़ में मज़ीद मुमकिन तौर पर जो DIG ट्रैफिक पुलिस हैं पीर मोहम्मद शाह, उनकी जानिब से एक इजलास होगा जिसमें दीगर SSPs और दीगर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसमें अफाम तफ़हीम से इस पर जो है वो मामला ज़ेर गौर भी होगा और मुमकिन तौर पर जो है वो नया प्लान जो है वो मरतब करवाया जाएगा, जिसके बाद जो है मुमकिन तौर पर जो ट्रैफिक की रवानी इस पीक आवर्स के दौरान मुतासिर होती है उसमें भी जो है वो कई हद तक रवानी मुतासिर होती है। अच्छा मुबशिर, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ट्रैफिक के दबाव की वजह सिटी वार्डन्स की काहली है या कुछ और वजह है? जी, जैसे कि असल में जो ट्रैफिक का दबाव है रवां माह में भी देखा गया, तो इस पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक हिकमत अमली बनाई। इस दौरान जो है वो DIG ट्रैफिक की जानिब से भी जो है वो इजलास का इनकाद किया गया। इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक जाम पर जो है वो मामला ज़ेर गौर आया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर पर भी जो है वो मामला मुख्तलिफ अफसरान ने जो है वो तबादला ख्याल किया। उसके बाद ये हिकमत अमली बनाई गई जिस पर कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी किए कि ये भी एक बड़ी वजह है कि रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो जमे गफ़ीर जो है वो सड़कों पर मौजूद होते हैं, उनकी कमी अगर होगी तो उसके बाद मुमकिन तौर पर जो ट्रैफिक है उसमें जो है वो चाहे पीक आवर्स का वक्त हो या दीगर कोई मकामात हों या दीगर कोई मुकर्रर वक्त हो, उस दौरान जो है वो ट्रैफिक इस तरह जो है वो सुस्त रवी का शिकार दिखाई नहीं देगी। इस वजह से ये हिकमत अमली बनाई गई है। लेकिन चूँकि ट्रैफिक रवां माह में जिस तरह जो है वो सुस्त रवी का शिकार रहती थी, अब चूँकि रिक्शों पर जो है वो बाकायदा पाबंदी आयद की गई है तो ट्रैफिक माजी के माह में रवां माह में कदर निस्बत जो है वो ट्रैफिक का उस तरह दबाव नहीं है। चूँकि पीक आवर्स का ये वक्त है इसलिए जो है वो दबाव रहता है। लेकिन अगर एदाद शुमार और तखमीना लगाया जाए रवां माह की मुनासबत से तो अब जो है वो ट्रैफिक उस तरह ट्रैफिक का दबाव नहीं है। लेकिन पीक आवर्स का ये वक्त है। मुख्तलिफ शाहराह और मरकज़ी शाहराह है, शाहराह फैसल कदीमी पुरानी ये शाहराह है जिस पर जो है वो इस मकाम पर ये जो है एक जानिब मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट और गिरदोनवाह के इलाके की जानिब जाती है। राशिद मनाज रोड के साथ मुख्तलिफ मकामात पर ये शाहराह जाती है। ये मशहूर और मारूफ शाहराह है। बड़ी बड़ी इमारतों के साथ कमर्शल और दफातर भी यहाँ जो है वो कायम है। इस वजह से लोग जो है इस सड़क का इख्तियार करते हैं। इसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। जी, मुबशिर हुसैन हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तजावज़ात पर बात करते हुए आपको बताएं कि शेर शाह सूरी रोड को मॉडल बनाने का काम तेज़ कर दिया गया। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागिन चौरंगी तक तजावज़ात का खात्मा, शादी हॉल्स के ज़ेर कब्ज़ा गलियां वागुजार कराई जा रही हैं। सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। शेर शाह सूरी रोड को मॉडल बनाने के लिए इक़दामात का आगाज। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से नागन चौरंगी तक तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के महकमा इंसदाद तजावज़ात ने दर्जनों तजावज़ात का खात्मा कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर फैसल बटनी बोले, अवामी शिकायत पर शादी हॉलों के तजावज़ात भी खत्म किए हैं। ये कार्रवाई है कि अपना शेर शाह सूरी रोड जो मॉडल रोड के लिए कमिश्नर साहब ने जो इसके अहकामात जारी करे, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि मेरिज लॉन की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना यहाँ के जो रेजिडेंट थे, जो ये मुतसिल जो गलियाँ थी मेरिज हॉल के, उसके साथ जो गलियाँ थी इन्होंने ऑक्युपाइड करी हुई थी और ऑक्युपाइड के साथ साथ इन्होंने बारबेक्यू का सेटअप और ये सारा जो है गलियों में लगा दिया था, जिससे गलियों की आमदोरफ्त बंद होकर गलियाँ पैक कर दी गई थी। तो टाउन चेयरमैन से साहब की हिदायत के ऊपर हमने ये गलियाँ सारी क्लियर करवाई। टाउन अमले का कहना था कि कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। इसके अलावा मैकेनिक मार्केट जो थी उसके बाहर जो शीट्स वगैरह लगे हुए थे वो क्लियर करवाए। पान के केबिन हो गए, पंचर स्टॉल हो गए, ये सब हमने वहाँ से उठवा लिए, क्लियर करवा दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ट्रक के अंदर सब सामान रखा हुआ है जो हमने जब्त किया। महकमा इंसदाद तजावज़ात की मुहिम तवील अरसे से जारी है, मगर इसके मुस्तकिल हल पर बदस्तूर सवालिया निशान लगा हुआ है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, City 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का रैली ख़त्म करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों से तफसीली मुलाकात हुई है, कई नकात पर इत्तफाक राय हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स ने रैली को ख़त्म करने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत ने हमेशा ट्रांसपोर्टर्स के साथ खड़े होकर इनके मसाइल हल करने की कोशिश की है। मज़ीद तफसीलात जानते
जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए नेशनल हाईवे पर वुकला की जानिब से ताहाल धरना जारी है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एक अंदाजे के मुताबिक 50,000 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो स्टक हैं। यही मामला हैं कि अब गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सफर का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने वजीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था और मारीपुर ट्रक अड्डे से रैली निकाली थी, लेकिन ये देखा गया कि जब रैली एमटी खान पहुंची तो वहां पर पुलिस ने कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए और फिर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन वहां पहुंचे, ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात किए और ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया और फिर उन्होंने उनकी यकीन दहानी पर जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने एहतजाज जो है वो रैली ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के साथ शर्जील मेमन ने जो बात की है और इनके जो मामला तय पाए उस पर ये चीज़ें सामने आई कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास प्राइम मिनिस्टर ने आज बुलाया है, तो इसमें इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि जो वुकला बिरादरी चाहती है नोटिफिकेशन की सूरत में उनको चीज़ें मिलेंगी और ये एहतजाज खत्म होने का इम्कान है, जिसके बाद रास्ते भी खुल जाएंगे। ये यकीन दहानी करवाई शर्जील मेमन ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कमिश्नर कराची के साथ ट्रांसपोर्टर्स की एक मीटिंग करवाई जाएगी जिसमें जो ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां जलाई गई हैं उनका हज़ारा किस तरह किया जाए, इस हवाले से भी पेशरफ्त का इम्कान है। साथ ही साथ जो देखा गया कि 10 दिन से जायद जो वो ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां फंसी रही नेशनल हाईवे पर, तो जो शिपिंग कंपनीज की जानिब से डैमेज और डिटेंशन लगाए जाते हैं उनके हवाले से भी शर्जील मेमन ने यकीन दहानी कराई ट्रांसपोर्टर्स को कि इस हवाले से भी सूबाई और वफाकी हुकूमतें शिपिंग कंपनी से बात करेंगी और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर किसी किस्म की कोई डैमेज और जो डिटेंशन है वो नहीं लगाया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेने और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी के बाद ट्रांसपोर्टर्स माने और उन्होंने इस रैली और एहतजाज को ख़त्म कर दिया। जी काविश मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में गर्मी की शदीद लहर जारी, दीगर अफराद की तरह हामला ख़वातीन भी गर्मी और दीगर अमराज से मुतासर होकर सिविल अस्पताल में रिपोर्ट होने लगी। सिविल अस्पताल की गायनी OPD भी मरीजों से भरने लगी। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। गर्मी की शदीद लहर से हामला ख्वातीन भी मुतासिर, सिविल अस्पताल में केसेस रिपोर्ट होने लगे। गायनी OPD मरीजों से भर गई। सिविल अस्पताल की गायनी OPD की माहिर इमराज नस्वा डॉक्टर सुमेरा खान कहती हैं, गायनी OPD में भी 25% मरीजों का इजाफा हो चुका है। इस मौसम में हामला ख्वातीन बाहर ना निकलें, साफ सुथरी खुराक और मशरूबात इस्तेमाल करें। OPD में मौजूद ख्वातीन बोली, शदीद गर्मी है, मायना कराने के लिए अस्पताल में मौजूद हैं। अच्छी सहूलियत ही मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ, दूसरी दफ़ा भी इससे पहले भी मेरा बच्चा यहाँ ही हुआ था सेवल में। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाए, टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर ने वो चेक करा, सब सही है। तिब्बी माहिरीन ने ख्वातीन को मशवरा दिया कि इस मौसम में खुली फिजा और साफ पानी का बंदोबस्त किया जाए। शहर में जारी गर्मी से जहां पर दीगर अफराद मुतासर हैं, वहीं पर हामला ख्वातीन और दीगर ख्वातीन भी गर्मी से शदीद परेशान होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रही हैं, जिस पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में घरेलू खुराक इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें ताकि मजीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। कैमरामैन इमरान अली के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। अपडेट ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। सिंध की सियासी सूरत हाल और केनाल्स से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है। केनाल्स के हवाले से किसी किस्म का समझौता न करने के अज़्म का इआदा किया गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से निसार खोड़ो, वक़ार मेहदी और सईद गनी की भी बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा कि इस मुलाकात में कौन से अमूर ज़ेर गौर आए हैं? जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुतनाज़ा कैनालों के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मस्बत फैसला काबिल तहसीन है और उनका ये कहना था कि मुतनाज़ा कैनालों का किसी किस्म का समझौता ना करना PP के मौक़िफ़ का इरादा है और उम्मीद है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो आज इजलास हो रहा है वो अवाम की उम्मीदों के ऐन मुताबिक फैसला करेगी। ये बात उन्होंने की है सैयद नवीद कमर से मुलाकात में, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल अवाम के उमंगों को तर्जमानी नहीं करती तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी। ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी सिंध के
या मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकात की है। उनमें निसार अहमद खोड़ो हैं, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी हैं, कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी हैं। इन्होंने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की और सूबा सिंध के सियासी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से तबादला ख्याल किया। जी, बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकातों के हवाले से अपडेट कर रहे थे आजिज़ जमाली। बहुत शुक्रिया आजिज़। कौमी शाहरा की मुसलसल बंदिश पर कराची होलसेल ग्रोसर्स का भी रद्द-ए-अमल। खबरदार किया कि अगर रास्ते फौरी तौर पर बहाल न किए गए तो अजनास की एक शदीद किल्लत पैदा हो सकती है। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। कौमी शाहरा पर वकला का धरना जारी, 40,000 कंटेनर्स फंस गए, शहर कायद में अजनास की किल्लत का खदशा। कराची होलसेल ग्रोसर्स ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि कौमी शाहरा की बंदिश के बाइस दालें, चावल और चीनी समेत जरूरी अशिया खुर्दनोश की किल्लत का खदशा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वक्त तकरीबन 40,000 कंटेनर्स रास्तों की बंदिश की वजह से फंसे हुए हैं, जिससे न सिर्फ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का अमल मुतासर हो रहा है बल्कि गजाई अजनास और मवेशी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे जो बन हुआ है अभी, तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हैदराबाद से जो ट्रक दालों के आते थे वो बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। चीनी के जो ट्रक, चीनी की किल्लत इसलिए होगी कि सिंध से आती हैं सारी चीनी, वो किल्लत का अंदेशा है, जो गोदामों में था वो पहुंच रहा है। और चावल का भी यही सूरत हाल है। दूसरे आइटम है, 72 आइटम है जो अभी पोर्ट पे यानी इस रास्तों में फंसे हुए हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। बोले अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो आइंदा चंद दिनों में मार्केट में अफरा तफरी पैदा हो सकती है। अगर ये नहीं सोच लाएंगे तो करोड़ों डॉलर एक्सपोर्टर ने नुकसान किया, उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए। किसी के लिए शिप थोड़ी रुकेगा, वो तो ऑर्डर कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं। और ये भी मैं कह दूं कि हुकूमत वक्त अब जो भी फैसला करना है बिल्कुल ऐसा फैसला करे कि आइंदा ये आवाज़ फिर ना उठे। होलसेल ग्रोसर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूरत हाल पर फौरी काबू पाया जाए ताकि मुल्क को गजाई बहरान से बचाया जा सके। अगर मसला हल ना हुआ तो अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21।